Yeah, hi Vaishali. So good morning and welcome. So today we will be doing first little exercise about this money blueprint. So I'm not going in detail about what is money blueprint and all. We have talked last time little bit, but here I will be telling one important thing. So money, as we all know, is just energy. So it is the energy of the person who is having it, and whatever we feel, whatever our thoughts, our feelings around money, we attract only that much abundance or that much money in our life. Okay. So this is universe's law, not any kind of science or physics law. This is the universe's law. How you are feeling about money, how you are dealing with the money, how you are giving, how you are receiving money, all these things plays an important part. Are you getting it? And also, like, let's say 1,000 rupees, money doesn't have its own value, own energy. Like 1,000 rupee may not have much value for me, but it may have like little value for you, or so much value for one person who is really in very much need. There is some emergency situation, there is something going on in his life. The same 1,000 rupees is different for each one of us, right? So it is not the money, it is like the person's energy or person's needs and desires, how the money is getting perceived. And there are some laws of abundance, and we really need to work on it. So today we will be doing little exercise so that we know where our blockages are, where we need to work on. We will be talking much more and doing more exercises regarding this in our mentorship. So I will be telling you about mentorship a little later. So now I will be telling you some point. In your notebook, you can make two sides. One side you can say, write lack, another side you can write abundance. Make two columns, lack or abundance. Okay, left side you put lack, right side you put abundance. Left side what? Lack, Lack. lack मतलब कमी, कमी है आपके पास या आप खुश महसूस कर रहे हो, abundant महसूस कर रहे हो, अपने आप को prosperous महसूस कर रहे हो. So I will be giving you some statement, you analyze and you take on lack or abundance, whatever is true for you. Okay. So the first thing is, how do you feel about talking about money? जब भी पैसे की बात होती है तो आपको कैसा फील होता है? यू फील वेरी हैप्पी और यू फील स्कैरसिटी, यू फील कि यार पैसा ही नहीं है, मैं मतलब बहुत हेडेक है मनी मैनेज करना, दिस इज नॉट अ गुड थिंग, मतलब बहुत हेडेक है, बहुत मुश्किल है इसको सीखना, कैसे वेल्थ क्रिएट करना है, आई डोंट, एंड यू डोंट लाइक टू टॉक अबाउट इट इन पॉजिटिव सेंस. ठीक है, आप मोस्टली नेगेटिव सेंस में उसके बारे में लेते हो कि या तो पैसा कमी है वो महसूस करते हो, या जो भी पैसे की बात हो रही है ना, यू डोंट लाइक. और आपका एनर्जी पॉजिटिव नहीं होता है जब भी अब पैसे की बात होती है. तो हाउ इज योर एनर्जी? इफ योर एनर्जी इज लो और नेगेटिव, पुट टिक ऑन द लेफ्ट साइड. Or if you are having good energy, it's like you feel abundant, you feel very excited when someone is talking about money. So you are feeling very excited, you are feeling motivated, you are feeling inspired, and you are getting this feeling of empowered. Money, okay, money की बात हो रही है, I am feeling empowered, I want to learn more. It's not like how you are having, how much you are having, it's what you are feeling. आपके पास हो सकता है कि पैसा हो ना, बट कोई बात कर रहा है पैसे की, यू आर फीलिंग एम्पावर्ड, यू आर फीलिंग इंस्पायर्ड, यू आर फीलिंग एक्साइटेड. आपका फीलिंग, इसमें आपकी कंडीशन नहीं है कि कितना पैसा आपके पास है. ठीक है, मैरी टाइम्स इनके पास करोड़ों रुपए भी होता है, दे फील लैक. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर फीलिंग. हियर वी हैव टू राइट व्हाट वी आर फीलिंग. सो पॉइंट वन क्लियर. हाउ डू यू फील अबाउट talking about money? So your energy gets positive or negative? Okay, done. Hi, Shweta. Yeah, hi dear. So we are Uh, doing little exercise to know our money blueprint or our association with money, okay. because money is an energy, and when we want abundance to flow in our life, so we need to have this positive relationship with money. First step is to be aware कि हम कहाँ पे spend करते हैं. This is not for you to show me or to show anyone else. This is for you to know how is your relationship with money. ओके, व्हेन वी आर Okay. टॉकिंग कि हमें इम्प्रूव करना है, फर्स्ट हमें पता होना चाहिए, किसी और से हमें शेयर नहीं करना है, बट हमारे लिए है कि अब भी हमारा एनर्जी क्या है, अब भी एट व्हाट लेवल वी आर वाइब्रेटिंग. एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट द थिंग इज वी नीड टू वाइब्रेट एट सच एन एनर्जी, एंड देयर आर स्लॉट मेनी प्रैक्टिसेस दैट वी नीड टू डू. तो फर्स्ट स्टेप इज बिकमिंग अवेयर. हमें अवेयर होना है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं.
तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि हाउ डू यू फील अबाउट टॉकिंग अबाउट मनी। आप एक्साइटेड हो जाते हो, खुश हो जाते हो, या फिर आपको लगता है कि यार ये फिर से पैसा पैसा, इतना सारा, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है, ऐसे होते जा रहा है, मतलब यू ऑलवेज फील नेगेटिव अबाउट टॉकिंग अबाउट मनी। कोई पैसे की बात कर रहा है तो यू फील स्कैर्ड, और कि यार क्या पैसा, क्या मनी मैनेजमेंट, ये ट्रैकिंग वगैरह मेरे से नहीं होता है, मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऑल दिस मनी ट्रैकिंग एंड ऑल। तो दिस इज लाइक whenever we are talking about money, how you are feeling. Second thing is how do you feel when you think about money। ठीक है, जब आपको पैसे के बारे में सोचना है, then how you are feeling, you are getting very excited, I'll get this much, that much, I'll buy this that, और you are feeling negative कि यार पैसा तो बहुत बेकार चीज है, जिसके पास होता है वो ऐसा करता है, मतलब what you are thinking, it could be anything, we all are human beings, thousands of thoughts come every day, so what is the major thoughts? Okay, sometimes Okay. like when we are inspired we get, okay, money is energy, now I have to think good good good, but what is your general thing, matlab how you generally think about money? नमस्कार So जी, you क्या feel चल रहा है? content, you feel content about money कि ठीक है जितना भी है, I feel happy, I am grateful, और you feel like कि इसके लिए पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा नहीं है, ये भी करना है, वो भी करना है, you don't feel satisfied, you don't feel content, you don't feel fulfilled, it's like I am So feeling, हमें yeah। ये हमें इसमें लिखना है, जो आप पार्ट्स बोले बनाने के लिए, उसमें लिखना है। सकते हो, आपको वैसे आंसर लिखना है हाउ यू आर फीलिंग, ठीक है, आपको क्वेश्चन लिखना है तो यू कैन राइट क्वेश्चन आल्सो, हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक अबाउट मनी, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। डू यू फील आई हैव इनफ, इफ यू फील आई हैव इनफ, ठीक है, मोस्टली आप वो सोचते कि ठीक है जितना भी है आई हैव इनफ, आई एम कंटेंट, देन पुट अदर टिक ऑन द अबंडेंस साइड, और इफ यू फील कि नहीं है पैसा, मतलब यू आर थिंकिंग ऑफ लैक या नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो यू पुट द टिक ऑन द लैक साइड। Okay. Now the third question is what is your energy when you receive money। जब आपको पैसा कोई देता है, how you feel, जनरली होता है कि हाँ जब when we receive money we generally feel happy, okay, this is general thing, but just see कि you are receiving money from just your husband, your father or your employer, ठीक है, वहां से तो नॉर्मली हमें खुशी मिलती है कि ओके ठीक है, बट मैनी अ टाइम्स we don't feel happy when we receive money from some unknown sources, okay, we feel like we have to ask or we have to like go certain another ways, ठीक है, जैसे कि कभी क्या होता है ना, आप रिश्तेदार के घर गए, देन दे ऑफर यू सम मनी, उन्होंने आपको 200 500 1000 कुछ भी, क्या क्या पहली बार आप उनके यहाँ गए, तो आप क्या लेके थैंक यू बोल रहे हो, या बोल रहे हो नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए, मतलब आई डोंट वांट, बस मतलब आगे यही बहुत है, मतलब अर्लियर आई यूज्ड टू डू दैट कि नहीं, मतलब पैसा लेना मतलब हमें लगता था ना, जैसे कल्चर में सिखाते हैं ना कि दूसरे के यहाँ जा रहे हो तो पैसे मत लो, तो कोई आपको पैसा अगर ऑफर कर रहा है, नॉट लाइक जनरल सेंस के, हाँ हस्बैंड वगैरह से हम लोग आराम से ले लेते हैं, but whenever you are receiving money from other sources, how you are feeling, you are saying no 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 I don't want, or you are just receiving it and saying thank you, so how is your energy, so lack or abundance, and today actually I registered for this Shiva Sadhana, so in that there is one exercise for men actually, not for women, minimum 21 people we have to ask भिक्षा, मतलब जैसे हमारे पुराने टाइम में होता था ना कि भिक्षा मांगना है, so this is to create abundance mindset, matlab right now I relate because I was reading all these things for some time, and today when I go through this process and then there was thinking minimum 21 people you have to go and ask भिक्षा, हमें भिक्षा मांगना है, मतलब we are at a certain level, अगर हमें किसी से मांगना होता है we feel कि हमारी इज्जत नहीं है, we feel कि हाँ मतलब भीख मांगना है, मतलब we take it really negative, and this is also like today I realized in the morning only कि this is also one of the way we are blocking abundance, हमें चाहिए कि हाँ इसी टाइप से पैसा आना चाहिए, मेरे पति से ही आना चाहिए, मेरे जॉब से ही आना चाहिए, ठीक है, we really have this mindset कि मेरे पास यही से पैसा आएगा, but universe is having 10 other tabs, but you are not focusing there, you just want the all the money to come from one single tab, ठीक है, तो इसीलिए ये वाला एक्सरसाइज था ना, ये शिव साधना का पार्ट है कि 20 मिनिमम 21 people you have to go and ask, and you, man मतलब this is for men and they don't wear, have to wear the shirt, they have to go shirtless, so मतलब in that I feel the biggest learning is कि हाँ मतलब आपको अपना ईगो छोड़ना है, अपनी limitations को छोड़ना है, many a time because of our ego, because of our limitations
we don't reach a place of limitless. Money is limitless, but because of the restrictions in our mind, we can't receive money from multiple sources, we restrict the flow of money in our life. Are you getting, guys? Or it is going like somewhere else? Okay, so put lack or abundance. When you receive the money, how is your energy? And then the next one is, what is your energy when you spend it or give it to someone? Like when you buy clothes or sabji or anything you buy, or you are buying gift or you are giving to someone, how is your energy when you are giving or spending the money? This is also equally important. How we are feeling. Many a times हम खरीद लेते हैं, and that was one thing with me for so long. I used to buy the things, buy the dresses, going for the photo shoot, going for like some expensive thing, and then I used to feel guilty कि यार बहुत पैसा खर्चा कर दिया. मतलब I spend the money also, and now I am feeling the guilty. तो मतलब मैंने खर्चा तो कर लिया, but guilty feel करने से मेरा वो blockages हो गया. Universe is thinking I don't like all these things. I don't like wearing nice clothes, going for the branded things and all these things, going for like good hotels and all. I feel guilty कि like बहुत पैसा खर्चा हो गया. So when you are spending that time, you have to feel happy. Okay, I got this experience. Oh wow, thank you money for this experience. Thank you money for this. मतलब arigato is Kenu Honda's technique, where whenever you are spending, just say thank you money. Because of the money you are getting anything, your food, your clothes, any experience, any happiness when you are traveling or anything like that. So you need to really say thank you whenever you are spending it. Most of the time, when it was with me for so long, now I try to do lots of gratitude to the money whenever I'm spending the money. So just check how you are behaving. Put a sign on the lack or the abundance side. Okay. And I'll ask for share also in the last. You are doing it or not. I'll check. Now the fifth one is, what is your integrity around money? Your ethics around money. Okay, sometimes many people, what they do, like for saving tax, they just do some malpractices. For earning also, they do some malpractices. Okay, how you are, मतलब what are your ethics around money? How you are earning it, ethically, unethically, or how is your integrity? और मतलब कैसे भी करके बस पैसा आ जाए, या फिर नहीं, एक प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, प्रॉपर चैनल से आना चाहिए. So if you are like ethically strong, then put in abundance side. If you are like, so it is not to judge anybody. We all have our childhood conditioning and so many things, because in the when we are born, we were clean slate. Because of so many things, so many conditions, we have become what we have become. So here nothing to judge, just to know for ourselves. Okay. So you write your ethics or integrity around money. And then the next one, important one, what is your energy around people who have lots of money, who are rich? How you feel about them, who are making lots of money? Do you feel inspired, good, or you feel कि यार ये तो कुछ गड़बड़ करके आया है, इसने ना जरूर करप्शन किया है? How you feel about that? जो भी rich people है, how you feel कि हाँ, you feel हाँ they have done something good, their mindset is something good, that's why they are here, or you feel कि इस बंदे ने ना कुछ तो गड़बड़ झमेला किया है, कुछ तो ये ना काला बाजारी करके आया है, कुछ तो करप्शन किया है, कुछ तो पॉलिटिशियंस को खिलाया है. What is your thought process? So just write. If it's negative, put the tick on the left side. If it's abundance, put the right tick. The next one is, how is your energy when someone charge you money? Okay, let's say if I'm offering the mentorship program, how you feel if I say कि हाँ, I will be charging 10,000, 20,000, 1 lakh, 2 lakh, any amount. So how you feel? You feel okay, this is good. One day I can also earn that much, right? और you feel कि यार अभी तो इसके लिए भी देना है, ये अभी इतना चार्ज कर रही है, क्या सीखेंगे, क्या करेंगे? How you feel? Okay. All these are our blockages, our limitations. When we create these limitations, we are also restricting the flow of money in our life. Shweta, repeat the question. What is your energy around the people who charge money? ठीक है, जैसे कि अभी मान लो मेरी एक फ्रेंड है, वो फोटो शूट करती है, तो आई एम लुकिंग कि वो मेरा फ्री में ही फोटो शूट कर दे, और आई एम रेडी टू पे. वो प्रोफेशनल है, मुझे लगता है कि भाई वो मेरा फ्री में ही कर दे.
या जैसे मैं आप फाइनेंस कोच हूँ तो मेरी फ्रेंड को लग रहा है कि मुझे फ्री में ही सिखा दे, या मेरी कोई फ्रेंड है जैसे कि अभी उर्वी है, मैं उससे बोल रही हूँ कि यार वो इंग्लिश सिखा रही है कि मुझे इंग्लिश फ्री में सिखा दे, तो हाउ आई एम फीलिंग इफ शी इज चार्जिंग, तो आई एम फीलिंग कि यार वैसे मेरी फ्रेंड है, मेरे से पैसा मांग रही है, मेरे से सीखना, मतलब हाउ यू आर फीलिंग around people who are charging money. So it could be your friend, it could be anyone, any mentor. Now we are in this online space also, anyone. So how you feel about those people who are charging money, or you feel really inspired, okay, one day I'll also reach there. And last one, what is your energy towards the investment you do for your own self? It could be anything, like any course you are buying for yourself, or any good thing that you are doing for yourself, any investment that you are doing for yourself. Okay, so what is your energy around that? You feel you are the last person to be getting this. जैसे कि मोस्टली क्या होता है ना, हम लोग के साथ बच्चों के लिए कुछ है तो we'll just buy, we don't think about the price, but when it is for ourselves we just really think कि लेना है क्या, सच में इतना वर्थ है क्या, लू क्या, तो how much importance you are giving to yourself. तो यू फील लैक और यू फील अबंडेंस कि नहीं भाई मेरे लिए है तो भाई मेरे लिए बेस्ट ही होना चाहिए, यहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिल सकता है, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट. तो हाउ इज योर एनर्जी? So yeah, this Yeah. was the exercise little bit. So ये you guys ओपन कर दे. the idea about your thing. So now I will be asking you to share some things. So Orvi, if you are okay, you can unmute. या Yeah, या have you got something? सॉरी, कॉल आ गया था मुझे, इसलिए मैं थोड़ा। कोई बात नहीं, जी it's okay. So how जी was your experience of doing this exercise? Did you get anything? या क्लियर हुआ, थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला। कहाँ पे आपका जैसे ब्लॉकेज है मेजर, आपको कहाँ पता चला कि कहाँ आपको वर्क करने की जरूरत है? मीन्स कमी कमी है मेरे इसमें, बहुत से क्वेश्चंस में कमी वाले में टिका है, लैक वाले में। सो जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन बोले थे ना कि अगर आप पैसे वालों के साथ रहते हो तो आपका क्या थिंकिंग आता है, तो पहले मेरा ये था कि अरे पता नहीं कैसे, इन लोग तो बड़े लोग हैं तो आ जाते हैं ऐसे। बट अभी अब मेरा थिंकिंग थोड़ा चेंज हुआ है, नहीं कि उनका एक्शन, उनका जो इम्प्लीमेंटेशन और एक्शन जो है, उस वजह से उन्होंने ये है, मतलब उस तक पहुंचे यस, हैं। और आई हैव नॉट रिटन द क्वेश्चंस, कैन यू या प्लीज? दैट इज फाइन. हाँ हाँ, जैसे कि आप मनी के बारे में बात होती है तो आपको कैसा लगता है? हाँ, मनी के बारे में बात होती है तो अब मतलब इंस्पायर लगता है कि अगर हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट सीख जाए, ठीक है, और सही तरीके से एक्शन लेना टाइम पे, सो वी कैन ऑल्सो अर्न मनी, यस, वेरी और गुड यार. इन So राइट here वे। the good thing is, मतलब whatever is good part, you can be proud of yourself, you can cheer up for हम्म yourself, you can give party for yourself कि हाँ अभी इतना काम मैंने कर लिया. पर जो भी हमारे लैक वाले पॉइंट है उनको आपको रखना है संभाल के, एंड उन पे हमें फिर वर्क करना है. मेंटरशिप पे हम उसके ऊपर और ज्यादा बातें करेंगे और वर्क करेंगे, बिकॉज ये हमारी ब्लॉकेजेस है. स्टिल आई वुड नॉट से कि मेरा 100% क्लियर हो गया है, आई एम ऑल्सो वर्क इन प्रोग्रेस. So we have to keep working. So yes, Vaishali, you can unmute and yes, you can talk little bit. How's your experience? What clarity you have got? हाय श्वेता. Yeah, hi एक्चुअली जो Vaishali. मैंने आपने एक्सरसाइज कराई है ना वो मैंने सुना है सारा. तो जैसे मेरा भी थोड़ा बिलीफ था ऐसे नेगेटिव मनी के लिए. जैसे कभी स्पेंड हो जाता है ना ज्यादा, तो थोड़ा Hmm. वो अंदर से वो होता है कि इतना पैसा चला गया, ऐसे पहले था मेरा. Hmm. अभी उसमें भी माइंडसेट काफी चेंज हुआ मेरा कि मनी के लिए, अगर मनी अब अपने पास आता है तो भी ग्रेटफुल रहना है, अगर हम किसी को देते हैं तो भी ग्रेटफुल रहना है. Yes. वो एक क्लियरिटी मिली. और कहीं भी से आए ऐसा अपने को माइंड सेट नहीं रखना कि ये वाले बंदे देगा तो ही मैं खुश होगी.
यस है यस, ना। दैट इज तो इम्पोर्टेंट। तो अभी कहीं से भी मिले अपने को मनी, उसको थैंक यू बोलना है। जब भी आए, जब भी हम दे किसी को तो थैंक यू। और हमको मार्जिन नहीं करना, नेगोशिएबल नहीं करना। जैसे पुअर पीपल होते हैं ना, उनके पास जैसे सब्जी वाले, ऑटो वाले, उनके पास कुछ नहीं करना चाहिए। और अगर हम नेगोशिएबल भी कर रहे हैं किसी, तो हमारा जैसे हम सेल्फ के साथ कर रहे हैं ऐसा लगता है नहीं, कि नेगोशिएट यू कैन डू, बट डोंट डू विद द पीपल हु आर बिलो यू। मतलब जो हमसे नीचे वाले लोग हैं ना, उनके साथ मत करो। हमसे ऊपर वाले हैं उनके साथ जितना मर्जी करो। वी डू द ऑपोजिट। जो हमसे ऊपर वाले हैं उनके साथ तो हम नहीं कर पाते हैं कि भाई इनसे क्या ही नेगोशिएट करें। हम जो नीचे वाले अच्छा, होते हैं कि भाई यार ओके। 2 रुपए ये कम का दे दो, 4 रुपए कम का दे दो, 10 रुपए कम हम्म लगा लो, 100 रुपए कम लगा लो, हम लोग जनरली कर देते हम्म। हैं वो। पर हाँ, मैं आई ऑल्सो यूज टू डू लॉट्स ऑफ अ गुड नेगोशिएशन। जैसे ऑटो वाले यहाँ पे बैंगलोर में महंगा, तो मैं जरा सा दूर जाना है 300 रुपए बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई 300 क्यों, 200 ले लो, 150 ले लो। वो एक, और जनरली हमें क्या कहता है, और बाकी चीजें ऑनलाइन हो रही है, मनी कहाँ जा रहा है, जब हम ऑटो वाले के पास जा रहे हैं तब बाकी जगह तो सब फिक्स हो गया है। तब लगता है कि भाई 300 की जगह 200 ले लो यार, 300 तो बहुत ज्यादा है। वी डोंट थिंक कि हाँ, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, वो ऐसे जनरली आ जाता है, अभी भी आ जाता है। हाँ रिसेंटली आई वेंट, तो उसने मतलब हम्म, जनरली मेरी बहन जाती है, वो 150 रुपए देती है, तो सिमिलर डिस्टेंस आई वॉज गोइंग। मैं रेगुलर नहीं जाती हूँ, कभी कभार होता है, तो ये चाहिए आज मी के 300। मैंने कहा 300 रुपए इतनी दूर का। बाप रे। मैंने कहा हम्म। 200 दूंगी मैं। पर तो मैंने एक मतलब ऑब्जर्वेशन किया है, जैसे हम मॉल में जाते हैं, फिर हम कभी हॉस्पिटल में भी जाते, तो वहां भी हम 1 रुपए भी कम नहीं देते, वहां पूरा जितना बोलते हैं उतना ही दे देते हैं, ऐसा हाँ, होता है ना। नेगोशिएट नहीं और करते हैं हम मतलब हम। नेगोशिएबल ए हाँ। वाले लोग के साथ ज्यादा करते हैं, जैसे हाँ, सब्जी तो वाले, अभी ऑटो हमें वालों के साथ। कॉन्शियसली ट्राई करना है कि जो हमसे नीचे वाले लोग हैं, भले ही ठीक है उनका 100 रुपए ज्यादा मिल गया, तो जस्ट थिंक हमें 100 रुपए ज्यादा ले रहे हैं, वी आर हेल्पिंग देम। हमें चैरिटी भी करना है ना, गिव बैक भी करना है ना, जस्ट थिंक इन दैट वे कि ठीक है भाई और मेरे पैसे माइंडसेट, तो। अपनी बिलीफ सिस्टम, बिलीफ जो है अपनी नेगेटिव मनी के लिए, वो चेंज करना है। माइंडसेट वाला जो है ना, उसके ऊपर काम करेंगे तो हमारा जो भी मनी के लिए नेगेटिव बिलीफ है वो रिलीज हो यस, सो डू यू जाएगा। फाइंड एनी लैक बिलीव, थैंक मतलब यू यू सो मच। एक्सरसाइज में, हाँ गुड थिंग्स आर गुड, बट डू यू फिगर आउट हाँ एनीथिंग दैट इज, मतलब हाँ, एक्चुअली हाँ मैंने, हैप्पीनेस हाँ, वाला तो अच्छा है, जैसे बट वॉट एवर इज लैक, दैट इज लेक में क्या इम्पोर्टेंट होता टू है, बी जैसे अवेयर ऑफ। हाँ, हाँ, लेक में क्या होता है कि जैसे मेरा मनी कोई ज्यादा खर्च हो जाता है, तभी मुझे थोड़ा वो होता है उसके लिए कि मनी चला गया ऐसे। ठीक है, तो वो लेक वाला पार्ट में आता है। फिर कभी किसी को देना है, जैसे भी ज्यादा देना है किसी को, तभी थोड़ा वो रहता है माइंडसेट कि इसको इतना देना पड़ेगा, इसको देना पड़ेगा, ऐसा वो रहता है। वो लेक वाले पार्ट में आता था मेरे। और काफी सारा क्लियरिटी मिली। और उससे भी आपके साथ मैंने पहले भी सेशन थोड़े अटेंड हाँ, किए थे, तो उसमें भी क्लियरिटी मिली थी। तो एक्चुअली अभी मनी काफी सारा, मैनेजमेंट क्योंकि हेल्प्स इन ऑल दीज थिंग। जैसे कि हमें होता है ना, हमें थिंक और फील जो होता है ना मनी के बारे में, जब हम मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं या फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं ना, तो वो सारे फीलिंग्स और ज्यादा ज्यादा और रहती हैं। दूसरा क्या था पहले कि मैं अपने ऊपर जब भी अपना कुछ हाई प्रायोरिटी वाला कुछ लेना है, तो थोड़ा ऐसा होता कि इतना सारा कॉस्टली नहीं लेना है, चलो छोड़ दो। अब मैं एक्सपीरियंस करना चाहती तो मैं करती हूँ, अब ऐसे नहीं करती। वेरी गुड, पहले आई एम, ऐसा था मेरा। यस यस, एंड आई एम सीइंग द चेंजेस। वेरी गुड यार। हाँ, पहले था बहुत ऐसे मेरे ऊपर करना है, तो मुझे ऐसा लगता था इतना कॉस्टली नहीं लेना। अब मैं बोलती क्यों नहीं, अब एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मेरे हस्बैंड ऐसे ही प्रीफर करते कि अगर चाहे एक भी चीज लो, पर अच्छी क्वालिटी वाली लो, को जो आपको अच्छा फील कराए। जब भी उनका भी स्पेंड करते थे तो मैं बोलती थी इतना सारा क्यों स्पेंड करे इतनी सारी चीजें में, कि मुझे एक ही चीज चाहिए पर अच्छी क्वालिटी वाली चाहिए, तो हाँ, मैं तो वो भी फॉलो द जार प्रीफर करती हूँ। सिस्टम जो मैंने एक बार सेशन में भी लिया था ना, हम्म तो हम्म उसमें हमें पता रहता है कि कितना पैसा हमें प्लेजर के लिए, कितना एजुकेशन के लिए करना है, तो हम्म वहां गिल्ट नहीं आता है। जब हम सिस्टम फॉलो नहीं हम्म, करते हैं ना, तो गिल्ट हाँ हाँ कहीं ना आ जाता है। इवन हम्म मेरे साथ भी अभी भी होता है, आई ऑल्सो गेट द गिल्ट समटाइम्स, कि जब ओवर स्पेंडिंग हो जाती है तो लगता है कि यार ज्यादा कर दिया। तो वो कहीं ना कहीं आ हम्म जाता है। अभी भी वी आर वर्किंग, तो हमें वर्क ही करते रहना है। और द इजिएस्ट वे इज टू फॉलो द सिस्टम। अभी स्टार्टिंग में हाँ, थोड़ा 2 4 6 महीने हमें डिफिकल्टी होगा, क्योंकि न्यू थिंग वेन एवर वी आर स्टार्टिंग, तो इट्स डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू अ सिस्टम। बट एक बार हैबिट हो हम्म जाएगा देन इट्स बिकम ईजी, एंड लाइफ लॉन्ग में वो बहुत हेल्प करता है। मतलब ये गिल्ट और ये वाली फीलिंग्स आती है ना लैक वाली, वो नहीं आती है व्हेन वी आर हैविंग द हम्म प्लान, व्हेन वी आर मैनेजिंग अवर मनी। तो वो ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। मेरे साथ तो पहले बहुत था, मनी मैनेज मतलब करना वो स्कैरसिटी ही लगता था कि यार पैसा बचाना है, कम खर्चा करना है, इसलिए करना है। बट नाउ आई नो कि हाँ, मनी मैनेजमेंट मतलब
आई एम ट्रैकिंग माई मनी, आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू माई मनी. दिस इज नॉट, Yes. कोई भी आप रिच पर्सन देख लो, दे ट्रैक एवरी सिंगल रुपी, जो भी उनके बिजनेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है, पर्सनल खर्चा हो रहा है, दे ट्रैक एवरी सिंगल रुपी. एंड वी, मतलब हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, वी थिंक कि हाँ हम मनी ट्रैक कर रहे हैं, मतलब हम, मतलब ये अच्छी लाइफस्टाइल नहीं है, अच्छा नहीं है, हमें पैसा संभाल के रखना पड़ रहा है. So yes, we need to come out of it. Then only we will be moving towards abundance, and it's a journey. So it will slowly happen, not in a day. So yes, yeah. Thank you, Avantika, thank would you you so much. like? Yeah, great. Avantika, would you like to share something? लैक बिलीफ तो होता ही है कि हम इतना कर रहे हैं, फिर वो लास्ट में बचता ही नहीं, तो समझ में नहीं आता पैसा गया कहाँ. महीने में सैलरी दिखती है, लेकिन जब आधा महीना खत्म हो जाता है तो लगता है अरे अभी तो था, भी कहाँ चला गया. Yes, yes. तो लेकिन ये हाँ एक्सरसाइज से थोड़ा हेल्प हुआ, कुछ अवेयरनेस एक्स्ट्रा मिला. हाँ यही है कि खर्च करो तो भी खुशी खुशी करो, किसी से लो तो भी हैप्पीली लो, जो दे रहे हैं वो भी अच्छा है और जिसे दे रहे हैं वो भी खुश रहे. तो हमेशा मतलब पॉजिटिविटी के साथ लेना है और पॉजिटिविटी के साथ देना है. और एंड ये नहीं शादी के सोचना बाद, है कि अगर कोई रिच है कि तो अच्छे से कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, ये हमें नहीं सोचना है कि वो रिच कैसे बना है. वो है उसका ना, जब हमें वो नहीं है, पता है हमारा तो गिव द अपना देख बेनिफिट ऑफ डाउट इन पॉजिटिव वे, कि ठीक है वे. उन्होंने माइंडसेट पे वर्क किया, कुछ अच्छा काम किया, इसलिए रिच है. हम क्या करते हैं, वो नेगेटिव सेंस में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं कि जरूर कुछ गंदा काम करके आया, खराब करके आया, इसलिए ऐसा है. तो जब भी इसीलिए वो ऐसा रिलेशनशिप है. में भी अगर हमें क्लियरिटी नहीं है ना, तो बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा पॉजिटिव साइड में लो. कई बार कर होता है रहे ना हैं रिलेशनशिप. ओपन. यस हम्म. यस. कौन है? तो हमेशा पॉजिटिविटी के साथ ही है. मैंने तो खैर मतलब बीच बीच में मैं अपने ऊपर बहुत खर्चा करती हूँ. मेरे को बहुत शौक था एक परफ्यूम लेने का, 10,000 था. सो मुझे लगा कि लूं ना लूं, लेकिन फिर लाइक आई एम हैप्पी, तो फिर मैंने वो बाय भी किया. तो मतलब एक अलग ही खुशी मिलती है उस चीज की भी यस, कि हाँ आई डिड इट, आई हैव डन, तो उससे हमारा स्टार्टेड डूइंग दिस. वाइब्रेशन बढ़ता है. बस ये होता है ना कि वो खरीदने के बाद हमें नेगेटिव नहीं सोचना है कि यार मैंने वो पैसा खर्चा क्यों हाँ कर दिया. हम एक देखो वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं अपना, खर्चा किया, हमारा वाइब्रेशन बढ़ा, बस सडनली फिर हम गिल्ट में पहुंच जाते हैं कि यार बहुत ज्यादा ले लिया इस महीने, यार सेव नहीं हुआ, तो हमारा वाइब्रेशन वो लो आ गया. जब बेनिफिट होना था ना, वो बेनिफिट नहीं हुआ. मतलब बेनिफिट होने वाला था कि अच्छा यूनिवर्स को पता चला कि भाई तुम्हारे डिजायर्स बहुत है, अब तुम्हें ज्यादा पैसा चाहिए, बट सडनली यू फील गिल्टी, तो लगेगा कि नहीं भाई उसको अच्छा फील नहीं हो रहा है. आवर फीलिंग्स ओनली कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स. तो यहाँ पे भी जो सारे क्वेश्चन थे वो फीलिंग के थे. तुम्हें फीलिंग कैसा फील होता है जब इमोशंस. तुम सोच रहे हो मनी के बारे में, दे रहे हो. जैसे इवन अच्छा ही शादी के बाद अच्छा मुझे होता है याद फिर है तो. कि हाँ, कि जैसे कि इवन मम्मी भी थोड़ा पैसा है कुछ देती थी, तो ये लगता है ना, नहीं मम्मी क्यों दे रही हो, क्यों कर रही हो, नहीं चाहिए. बच्चों को भी देते, क्यों दे रही हो मम्मी. मतलब वो नहीं, रिसीविंग वाला एनर्जी आई नहीं वाज था. द डिफरेंट वन. मुझे जो मेरे तो क्या कजन्स भी आते थे, मुझे पूछते तुझे पैसा चाहिए, आई वाज लाइक यस. मैं हाँ, घर में दैट इज सबसे वेरी पैसा गुड. लेके रख लेती थी. दैट वाज गुड. बट भले आई ही. वाज ऑपोजिट. मतलब पहले बचपन का तो याद नहीं, बचपन में तो ठीक है पापा से आराम से लेते थे, पर शादी के बाद वो थोड़ा चेंज आ गया कि मम्मी जब भी देती थी कि क्यों दे रही हो, रहने दो, मतलब वो, मतलब नहीं, ऐसा आई थोड़ा एम बहुत है कि मेरे मुझे तो थोड़ा अजीब लगता था, झिझक लगता था मुझे कि तो यार. मम्मी भी पैसा देती थी और पापा पूछते थे पैसा है ना, मैं लाइक नहीं है. पापा के चाहिए, उनका हाँ चाहिए. तो पापा मम्मी को बोलते थे ये जो बाहर जाती है पैसा नहीं दिया तुमने उससे मुझसे. तो वो तो मेरी ट्रिक होती है सबसे पैसा लेके रखने की. मैं तो अभी भी ऐसे ही करती हूँ. मुझे जो बोलता है ये दे दो, मैं हाँ दे दो चलेगा अच्छा. Yeah, good, good. This is also good part of receiving money from multiple sources. So you are doing good. Keep doing that. And Aarti, would you like to share something? Yes. Yes. Partho, please go. Hi, Shweta. Yes, dear. I would like to share that somewhere I have also like mindset जैसे कोई देता था, the same what you have said. I have also the same thought. So we need to change on this. और now I'm not like that कि अगर मेरे को अपने ऊपर spend करना है तो मैं उसको बोलती हूँ कि सोचूं कि ज्यादा हो रहा है यार. अब मैं करती हूँ. That is good. Like हाँ कोर्स बाय करना है तो I thought once and do it. Like for yours also. तो Yes. मैं वो कर देती हूँ. अब पहले जैसा नहीं है. एंड ऑल्सो फॉर रिच पीपुल्स वाला पॉइंट जो आपने बोला था,
उसमें भी आई वाज लाइक कि मैं किसी के लिए पहले नेगेटिव थॉट्स आते थे, अभी भी मिक्स थॉट्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि क्लियरली आई एम लाइक दैट, Yes. बट हाँ मिक्स थॉट्स हैं उसमें भी। Yeah, तो we will be working in detail. Don't worry. You are in the mentorship. So yes. या But the thing is ना, I will be telling you have to work a lot. ठीक या है, मैं करेक्ट बताऊंगी, बट जितना आप खुद के ऊपर काम करोगे रिजल्ट उतना आपको अच्छा मिलेगा। करेक्ट बस करेक्ट। सुनने से चीजें नहीं होंगी, जैसे यहाँ पे बस मैंने बता दिया, बट वी हाँ नीड टू डू दीज थिंग्स एंड वी नीड टू मेक इट अ हैबिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो आई no विल no बी no this टेलिंग यू हाउ exercise I have done with you, that's why I have a clarity ki which point I am in, like lack side or which is the abundant side, so we will definitely work on it. yes, yes, and we have to keep doing all these things. Yeah, correct. Yeah, and HP, who is there, can you unmute and turn on your camera? Yeah, she is my friend. Okay. So can you tell your name? Can you unmute, please? Hello, Amrita Didi. Can you please turn on your camera? Don't know. She is listening only. It's okay. Yeah. So yes, now like we are done with this. So a little bit I'll tell about that session. We are already there, Avantika, Aarti and Urvi. So yes, I will be telling who may be watching the recording. So this 3 months journey with of first thing we will be setting the vision for ourselves. श्वेता, एक सेकेंड, आपका आवाज ना थोड़ा नीचे ऊपर हो रहा है, मीन्स कांस्टेंट नहीं आ रहा है। I think I'll buy a mic. या Is it clear now? अभी ठीक है। हाँ अभी ठीक है। हाँ Yes. So this 3 months journey we are going to start from this Thursday, 11 a.m. will be the sessions. So in these 3 months we will be working on our mindset, money management, making it a habit of managing the money. क्योंकि पैसा हमें मैनेज करना है, there are so many things. So from anywhere you listen, even for the personal development, mindset, money management is the key. आपको पैसा जब भी बढ़ाना है, ज्यादा पैसा चाहिए, you have to manage your money. Not from the mindset of lack, but from the mindset of abundance. कि हाँ मैं पैसा मैनेज कर रही हूँ, and for the women I know, I was also like that, कि भाई क्यों करना है, पति कर रहा है ना, बहुत अच्छी बात है, मेरे को क्यों करना है, ये एक्स्ट्रा काम क्यों करना है, इतने सारे काम कम नहीं है मेरे पास। तो नाउ वी नीड टू मूव इनटू दिस स्टेप कि हाँ हमें अपना मनी मैनेज करना है, एक सिस्टम फॉलो करना है, इसको एक हैबिट बनाना है। स्टार्टिंग में टफ होगा, शादी के बाद भी बहुत सारी चीजें हमने की, टफ थी, पर हाँ धीमे धीमे आदत हो गई। सेम चीज आपको इसको भी इंपॉर्टेंस देना है, मनी मैनेज करना है, हैबिट बनाना है। एंड देन वी विल बी वर्किंग मोर अबाउट, देयर विल बी 72 क्वेश्चंस। यहाँ पे अभी हमने 6-7 क्वेश्चंस किए, बट देयर विल बी 72 क्वेश्चंस वी विल बी वर्किंग ऑन, and there you will be finding out what belief for you is like holding you back. ठीक है, these are the general statement, then we will go single in details कि ठीक है what could be your belief, आपका कौन सा belief हो सकता है कि जो still आपको hold back कर रहा है। तो then there will be one statement, one belief. belief क्या होता है कि कोई भी thought multiple times we have repeated in our mind, then it has become belief, and we see our life from the lenses of our beliefs. ओके, एंड वी अट्रैक्ट, जैसे कि लाइफ में अबंडेंस भी होगा, जो अपॉर्चुनिटी भी होगा, बट हमने लेंस पहन रखा है स्कैरसिटी का, वी वोंट बी गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी, वी विल नॉट बी एबल टू सी दोस थिंग्स इन आवर लाइफ. So we have to clear those lenses through these exercise, money blueprint and all these things, and I will be bringing some more things now, I'm thinking, from the last time, and I'll give the last members also a chance to attend those sessions. So earlier we had one session, now I'm planning 3 sessions on this money blueprint. So I feel now we will be doing more exercises here. So yes, and then we will be this following money management system. I will be teaching you the jar system, giving you the template how you can follow the jar system, and then we will be working on this financial planning. It will be like couple or family financial planning. Okay, some of you, if you don't want to include your husband, it's up to you, but this is kind of I will be doing for the couple, for the family, because I feel we are a part of family. If we are doing only for ourselves only, so it is not gonna help that much. ठीक है, it is good अगर आपके हस्बैंड बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, you are taking the first step. मतलब अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो, एक स्टेप ले रहे हो, इट्स गुड, बट आई वांट कि हाँ आप अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ आओ, एंड
generally in one session I will explain about the concept and then we will be doing individual financial planning, क्योंकि सबकी situation अलग है, सबके finances अलग है, सबके goals अलग है. So one on one we will be doing this financial planning and I will be preparing the financial plan. I'm CFP also, so you will get a nice professional plan for you as per your thing. So we will be having 2-3 sessions as मतलब जितने भी required होंगे, we will be having. We will be looking at insurance also and then we will be learning about investments and mutual funds. तो मतलब इस कोर्स में मैंने स्पेशली म्यूचुअल फंड्स को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि दिस इज एक्चुअली वन गुड वे एंड मोस्ट ऑफ द वीमेन दे फियर अबाउट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स कि क्यों मतलब कैसे करना है, पैसा एकदम खत्म तो नहीं हो जाएगा, डूब तो नहीं जाएगा. आई वॉन्ट यू टू हैव अवेयरनेस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स. यस, मेरी स्लाइड ही चेंज नहीं हुआ. So this is my actually mission, not a business, nothing like that. I just started and I'm really aligning now with my purpose. I really want to empower women, create a big community where women are financially literate and they really are inspired to take action. ऐसा नहीं है कि भाई उनको पति बोल रहा है कि खर्चे ट्रैक कर तो वो कर रहे हैं. They are inspired कि I want to do it. जैसे कि हम बाकी चीजों में होते हैं ना कि हाँ पार्टी का प्लान करना है, हॉलीडे प्लान करना है, we are excited about it. Similarly, I want women to feel excited about planning their finances, creating wealth for themselves. So this is one of my mission. I really want that transformation in women when they are talking about money, because as a woman I feel when a woman grows, their family grows and we are passing the same legacy to our kids. हम अपने बच्चों को भी सेम लेगेसी पास कर रहे हैं. तो इट्स इम्पोर्टेंट कि हाँ अभी हम इस जनरेशन में इतनी सारी चीजें अपॉर्चुनिटी है टू ग्रैब ऑन इट. So yes, I have covered these things. First month we will be doing this and yes. So I'm not going with one slide by slide. So I think we have covered all these things. How you will be choosing the right fund, where you can buy. So I will be teaching everything. And tax planning related with this mutual fund and investment, I will be telling, not overall, but related with the investment, whatever I will be covering regarding mutual fund, I will be telling you. Yeah, there will be like 3 months, 12 weekly sessions will be there and 3 to 4 implementation sessions will be there. Like after first month, I will be having one review session, because money management, when you will, जब आप मनी मैनेजमेंट वाला सिस्टम फॉलो करोगे तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा डिफिकल्टी होता है, समझ नहीं आता है. तो आफ्टर द सेशंस generally like now after 4 weeks I done one review sessions and I help them to understand in better way कि हाँ और कैसे कर सकते हैं, क्या है, because sometimes वो थोड़ा प्रॉब्लम आता है स्टार्टिंग में. फर्स्ट सेशन हम वो करेंगे, देन हाँ फाइनेंशियल प्लानिंग का हम कपल के साथ सेशंस करेंगे जिसमें कि हम बात करेंगे, आपकी नीड के बारे में जानेंगे एंड देन आई विल बी प्रिपेयरिंग द प्लान एंड देन आई विल बी प्रेजेंटिंग दैट टू यू. और उसके बाद एक और सेशन इन द लास्ट ऑफ द मेंटरशिप लास्ट वीक में और लाइक 10th वीक के बाद में, whenever you want you can schedule a session. जो implementation sessions होंगे वो आप अपने अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो, ठीक है. और कोई वीक में आप नहीं ले पाए तो आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग, बट आई वुड लाइक कि हाँ लाइव में ही आके करो, क्योंकि रिकॉर्डिंग में उतना कनेक्ट नहीं आता है. हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ करते हुए रिकॉर्डिंग देख लेते हैं एंड देन द थिंग्स डोंट गो दैट डीप, उसका उतना फायदा नहीं होता है. कम इन द लाइव सेशन, प्लान योर डे अकॉर्डिंगली, टाइम इज फिक्स्ड. तो yes, and then I will be sharing the templates and tool. So one tool I will show you if you want. I have to open that. Earlier I was using some different tool. Now I have made one tool with the help of my husband. He helped me in making that. I am also learning. Are you guys able to see that? Okay. Now actually I have made this template regarding मतलब jar management system I am following now. So I have made this template according to that. If you have attended that jar management system, so in that we are having 4 jar for expenses: necessity jar, our education jar, our play jar, and charity jar. 2 are for the investment, financial freedom, and long-term saving for goals. So I'm not going in details, but yeah, this is a summary sheet. Like this, you will be getting your thing.
So we will be doing fixed expenses, day-to-day expenses. Now then your total will be there, surplus will be there, and then this you will be getting this automatic thing. How much is your current percentage in the jar? And then we will be having some aspirations ki where we want to go. This will be like automated, and here like income and investment you have to put, fixed expenses you have to put, and I will be telling you how you have to do all these things in the sessions. And these are like day-to-day expenses. So this system we will be following, and then yes, financial planning template also I am making. We will work on that. So any question anyone you want to ask, you can ask. Otherwise we'll good to go.